Hello friends, welcome to my YouTube channel Paramveer Sir's English Language. In this video lecture, I am going to take Maharashtra State Board's English Higher Level Lesson 1.2 The Thief Story. It is an important chapter as it has been asked as a paragraph in 2019 boards. So let's start with the explanation. Let's start with the writer of this lesson, Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. What do you mean by descent? It is son of British, means he was a writer, Indian writer, but of British descent, means son of a British. He lives with his adopted family in Lanjaw in Mussoorie, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So this was all about Ruskin Bond. Starting with this chapter. I was still a thief when I met Anil. Here I means the Ruskin Bond. Ruskin Bond ने अपने विषय में ये चैप्टर लिखा है. इसमें क्या बोल रहा है कि मैं एक चोर था. I was still a thief when I met Anil. Anil is the second character of this chapter. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Okay, so 15 साल का था कौन? रस्किन बॉन्ड. और वो एक बहुत अच्छा चोर था जब वो अनिल से मिला. फिर आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. एक्सपीरियंस्ड इन वॉट? इन रॉबिंग. ठीक है. एंड फेयरली मतलब ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था वो किस में? थीफ में, थेफ्ट में. ओके. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. So this is about what writer is trying to tell you कि अनिल क्या क्या उसकी फीचर्स थे. He was a tall, लंबा, lean means slim, fellow, and he looked easygoing means happy for enough his purpose, kind and simple for my purpose. तो जब वो उनके पास पहुँचे कौन इस चैप्टर के थी, तो क्या उन्होंने बोला कि अनिल कैसा था? एक 25 ईयर्स ओल्ड था और वो बहुत ही ईजी गोइंग लग रहा था मेरे पर्पस के लिए बेहतर. आई हैडंट मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस. सो द थीफ, द राइटर वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि मैं इसका कॉन्फिडेंट आराम से जीत लूँगा. तो यहाँ है हमारी स्टोरी का पहली स्टार्टिंग. दो कैरेक्टर है स्टोरी में, एक है रस्किन बॉन्ड खुद, हरी सिंह and Anil. Moving on further, you look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So this is an direct speech sentence. You look a bit of wrestler yourself. सीधा राइटर ने क्या बोल दिया अनिल को कि आप रेसलर जैसे दिखते हैं. और ये उसने अनिल की क्या की? एक झूठी तारीफ की. वहाँ पर क्लियर कट लिखा है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. व्हाट इज मेंट बाय फ्लैटरी? इनसिंसियर प्रेज. ओके. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो सामने से अनिल ने भी वैसे ही जवाब दिया, क्या आप भी करते हैं? तो सामने से जब ऐसा जवाब आया तो रस्किन बॉन्ड क्या हो गए? थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि मैं उस समय बहुत पतला था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? हरी सिंह. आई लाइड. ये था उसका पहला झूठ. सी जब उसने पूछा अनिल ने कि आप रेसलिंग करते हो तो उसने झूठ बोला कि येस आई डू रेसल अ बिट. सो उसने सामने से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने क्या झूठ बोला? हरी सिंह. अब ये हरी सिंह कैरेक्टर को ही हमें लेकर चलना है. ये था सबसे पहला झूठ. एक्टिविटी में पूछा जाता है व्हाट इज़ द फर्स्ट लाई? हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ
that kept me ahead of the police and my former employers। क्या बोलते हैं, क्यों उन्होंने झूठा नाम लिया? क्योंकि वो हर महीने अपना नाम बदलते थे ताकि वो पुलिस से दूर रह सके और उनके फॉर्मर एम्प्लॉयज़, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिनको पहले उन्होंने बेवकूफ़ बना के चोरी कर चुकी है, तो उनसे बचने के लिए वो हर महीने रस्किन बॉन्ड हर महीने नए नाम लिया करते थे। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, उन दोनों जनों ने थोड़ी रेसलर्स के बारे में बात की, वो जो कि मतलब ग्रंट करते थे। ग्रंट करने का मतलब गटरल साउंड, यानी जब कोई रेसलिंग करता है तो ऐसे हु हा ऐसे घर की आवाज़ निकालता है ना, तो वो आवाज़ को ग्रंटिंग बोला है। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। लेकिन हरी सिंह के पास इस विषय पे बोलने के लिए कुछ था क्या? नहीं, बिकॉज ही हैज़ वेरी लेस नॉलेज। फिर अनिल उठ के चलने लगा एंड हरी सिंह उनको कैजुअली नॉर्मली फॉलो करने लगे। हेलो अगेन, ही सेड। हु सेड? Hari Singh said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. जैसे ही अनिल ने मुड़ के उससे पूछा हेलो अगेन, आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, तो उसने क्या बोला हरी सिंह ने? पहले तो एक बहुत ही अपीलिंग स्माइल दी। अपीलिंग मतलब किसी का अटेंशन खींचने वाली स्माइल, वो दी और बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो अनिल ने भी सीधा बोल दिया बट आई कांट पे यू। So I thought over for a minute, perhaps I had misjudged my man। तो अनिल ने जैसे ही बोला कि I can't pay you, मैं आपको पे नहीं कर सकता, तो रस्किन बॉन्ड क्या सोचते हैं कि मैंने किसी भी मैन को मिसजज नहीं करना चाहिए, और वो एक मिनट के लिए उस विषय पे सोचने लगे। अब आगे क्या हुआ, लेट्स सी। I asked, can you feed me? So he replied, can you cook? I can cook। I lied again। सी सामने से क्वेश्चन पूछा अनिल ने कि हरी सिंह ने पूछा क्वेश्चन कि कैन यू फीड मी, अगर आप भैया मेरे को पे नहीं कर सकते हो तो कम से कम मुझे पाल तो सकते हो कि नहीं। तो सामने से अनिल पूछता है कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हो? तो द सेकेंड लाई दैट हरी सिंह टोल्ड इज आई कैन कुक। अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ, और ये झूठ उन्होंने बोल दिया। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I was just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing। क्या हुआ, जब ये कन्वर्सेशन हमारा ख़त्म हुआ, मैंने झूठ बोल दिया कि आई कैन कुक, तो उसने मुझे अपने रूम में लेकर गया। वेयर वॉज द रूम ऑफ अनिल? लोकेटेड एट जुमना स्वीट शॉप। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। तो क्या हुआ, जुमना स्वीट शॉप में अपने रूम पे लेकर गया और उन्होंने मुझे बैल्कनी की प्लेस ऑफ़र की सोने के लिए। लेकिन ये है कि मैंने उस रात को इतना बुरा खाना बनाया था, सो मच टेरेबल फूड दैट आई मेड, कि अनिल ने वो खाना खुद तो खाया ही नहीं और एक स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा गली के कुत्तों को दे दिया। स्ट्रे मीन्स आवारा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोला कि जाओ भैया सो जाओ। लेकिन मैं बेशरम के समान आई जस्ट हंग अराउंड, मैं हंसते हंसते स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और वो मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड and said never mind, he'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। तो इतना काइंड पर्सन था अनिल कि इतना बुरा खाना बना देखने के बावजूद भी उसने बोला, बाद में पीठ पे थपथपाया, ही पैटेड ऑन हरी सिंग्स बैक एंड टोल्ड कि कोई बात नहीं, मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा। और साथ ही साथ ना सिर्फ खाना बनाना, अनिल ने हरी सिंह को अपना नाम लिखना सिखाया
धीरे धीरे होल सेंटेंसेस लिखने सिखाए, मैथमेटिक्स सिखाई टू ऐड नंबर्स। एंड ये सब देखकर हरी सिंह बहुत ग्रेटफुल, बहुत ही उनके मन में अनिल की जो रिस्पेक्ट थी वो सडनली बढ़ गई थी और उनको लगने लगा था कि भैया अब तो मैं एक एजुकेटेड पर्सन के समान पढ़ लिख पाऊंगा और हर ऊंचाई हासिल करूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. धीरे धीरे दिन बीतते गए, मैं अनिल के लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट. प्लीजेंट मीन्स हैप्पी. आई फेल्ट हैप्पी टू वर्क फॉर अनिल. मैं रोज़ सुबह उसके लिए चाय बनाया करता. फिर अपने समय में से मैं रोज़ का जो राशन होता है, डेज सप्लाईज मीन्स रोज़ का राशन रोज़ लेकर आया करता था. और उसमें से मैं क्या गपलाबाजी करता था कि मैं उसमें से रोज़ ₹1 का प्रॉफिट कमाया करता था. मुझे पता था कि अनिल को पता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ, बट स्टिल अनिल ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बोला. तो इससे क्या हुआ, हरी सिंह की जो हिम्मत थी, कॉन्फिडेंस था, वो थेफ्ट के लिए बढ़ने लगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Anil made money by fits and starts. What do you mean by fits and starts? This is a proverb. Fits and start means in short irregular intervals. यानी धीरे धीरे कभी भी पैसे थोड़े बहुत कमाता था. सी कैसे कमाता था? He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go and out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. क्या होता था, वो एक हफ्ते किसी से लेता था पैसे, फिर अगले हफ्ते सामने वाले को वापस करता था. और वो हर बार अपने नेक्स्ट चेक यानी दूसरी बार किससे लेना है इस बात के लिए घबराता और टेंशन लेता था. लेकिन जब भैया को पैसे मिलते थे, किसको, अनिल भैया को पैसे मिलते थे, आई एम जस्ट जोकिंग, तो वो बहुत सेलिब्रेट करता था, बाहर जाके मस्त सेलिब्रेट करता था. तो हरी सिंह को क्या लगा कि इट सीम्स दैट ही रोट फॉर मैगजीन्स. अनिल शायद किसी मैगजीन्स के लिए लिखता था और उस लिखने के पैसे वापस लेता था. विच वॉज अ स्ट्रेंज वे, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज वे टू मेक अ लिविंग. तो ऐसा उनको लगा, किसको, हरी सिंह को. फर्दर, one evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम क्या हुआ, वो घर आया और उसके हाथ में कुछ छोटा सा बंडल था पैसों का, नोट्स का, और उसने मुझे क्या बोला कि ये पैसे कहाँ से मिले हैं, मैंने किसी पब्लिशर को एक बुक लिखकर पब्लिश कर बेची है. और उसने रात को वो पैसे मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे दबा दिया था. I had been working for Anil for almost a month and, apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. What was the line of work of Hari Singh? Can you tell me? It is थेफ्ट, चोरी करना, ये लाइन ऑफ वर्क था हरी सिंह का. हरी सिंह अनिल के लिए 1 महीने से काम किया जा रहा था, लेकिन वो बोलता है कि मैंने सिर्फ जो शॉपिंग में चीटिंग की, उसके अलावा मैंने कुछ भी काम नहीं किया. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मैं हर स्टेप में मैं कर सकता था. अनिल हैड गिवन मी द की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. सी, अनिल को इतना विश्वास था हरी सिंह पे कि उसने अपने घर की चाबी उस हरी सिंह को थमा दी थी कि भैया तुम कभी भी कोई भी दरवाज़ा खोल के आ जा सकते हो. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट. इतने सारे चोरों से हरी सिंह मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वासु हरी सिंह को कौन लगा? इट वॉज अनिल, क्योंकि उसने अपनी घर की चाबियाँ तक दे चुकी थी. फर्दर, एंड that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice that he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. चोरी करने का यही तो मज़ा होता है. एक तो पैसे मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा मज़ा, और दूसरा मज़ा ये होता है कि सामने वाले की परेशानी देखना. तो हरी सिंह का क्या सोचना है कि कोई ग्रीडी यानी द पर्सन हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लालची इंसान को चोरी करने में क्या है, बहुत ईजी होता है. क्यों? क्योंकि वो क्या है, ग्रीडी है.
अगर मैंने उसके पास से चोरी कर लिया तो फिर वही काम करके वो पैसे कमा लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है, केयरलेस मैन के घर में चोरी कर पाना। क्यों भैया? क्योंकि केयरलेस मैन ऐसा होता है जिसको पता भी नहीं होता है कि उसके घर में चोरी हुई है, और वो मज़ा जो चोरी करने में पाया जाता है वो नहीं उठा सकते हैं। दैट्स वाई हरी सिंह फाउंड डिफ़िकल्ट। Last two lines. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. अब हरी सिंह ने अपने मन को क्या बना लिया, बहुत कठोर बना लिया कि भैया अब मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना है, क्योंकि अगर ये पैसे मैंने चोरी नहीं किए तो ये अनिल ने क्या करना है, पैसे अपने दोस्तों के साथ वेस्ट कर देने हैं। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat upon the floor considering the situation. See the climax. कैसा है हमारा क्लाइमेक्स? चल रहा है कि अब रात हो गई है, अनिल सो रहा है, चांद की किरणें अंदर आ रही है और मैं फर्श पर बैठा हूँ सिचुएशन पे दाव लगाने के लिए। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. सिचुएशन देखिए क्या बताया जा रहा है कि मैं क्या किया, हल्के से उसके बेड के पास आके बैठ गया और मैंने उसका चेहरा देखा तो अनिल का चेहरा एकदम क्लियर था। क्यों? क्योंकि उसको कोई फिक्र ही नहीं थी, और मेरे चेहरे पर मोस्टली स्कार्स यानी दाग धब्बे ही थे। क्यों? क्योंकि मेरे मन में टेंशन था, कुछ चीज़ करने का जज्बा था, चोरी करना था मुझे, इसीलिए मुझे डर भी लग रहा था। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब भैया ने दाव लगाया और क्या किया, मैट्रेस के अंदर, गद्दे के अंदर हल्का सा हाथ डाल के जैसे ही पैसे का नोट उसको मिला, फट से उसने खींचा, बिना कुछ आवाज़ किए धीरे धीरे रेंगते हुए रूम के बाहर गया और भागना शुरू कर दिया। When I was on the road, I began to run. जैसे ही भैया रोड पर आए, कौन? हरी सिंह रोड पर आए तो वो दौड़ने लगे। I had the notes on at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो क्या बोल रहा है, जैसे ही जो वो रोड पे दौड़ने लगा था, दौड़ते दौड़ते उसने क्या किया, फिर धीरे से अपनी स्पीड स्लो किया और उसने पैसे कहाँ रखे हुए थे, पैजामे के नाड़े पर स्ट्रिंग करके रखे हुए थे। और यू मेरे सिचुएशन। तो क्या बोलता है अनिल कि मैंने फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड स्लो करी और चलते चलते उन नोटों को गिना। तो वो कितने रुपीज़ थे? इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50s, मीन्स 600 रुपये थे 50 के बंडल में। तो उन जैसे ही वो पैसों को गिना, उसके मन में क्या हुआ कि अरे भाई अब इतने पैसे में तो मैं एक ऑयल रिच अरब यानी मस्त ग्रंटेड अरब के समान 1-2 हफ्ते के लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ। काइंडली नोट स्टूडेंट्स कि ये पिछले बहुत पहले ज़माने की बात हो रही है। उस समय 600 रुपये भी बहुत कीमती होते थे, वरना आप लोग सोचोगे कि 600 रुपये में भैया 1 हफ्ता 2 हफ्ता कैसे रह सकता है कोई। ओके। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. See the climax of the story. स्टेशन पहुंच गया है हरी सिंह। स्टेशन पहुंचने के बाद टिकट ऑफिस पर वो बिल्कुल भी नहीं रुका। वाई? बिकॉज ही हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ. He directly dashed away straight to the platform, which was from there to Lucknow Express. ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन वो कौन, हरी सिंह, ट्रेन पर आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ सम रीज़न दैट ही कांट एक्सप्लेन। एंड धीरे धीरे ट्रेन जो है वो
चले गई, बट वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really was, well, the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. See the situation, पूरे शहर में वो किसी को नहीं जानता था, सिर्फ एक जन को, जिसके घर हरी सिंह ने चोरी रॉबिंग की थी. उस समय उसके पास कोई नहीं था कि वो किसी के घर जाके रात गुजार सके, ना ही होटल्स, ना ही स्टेशन पर. नो पर्सन वॉज नन टू हिम. तो धीरे धीरे वो स्टेशन से मुड़ते हुए बाज़ार के रोड पर धीरे धीरे वॉक करने लगा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but the loss of trust. मेन चीज़, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ द लॉस ऑफ ट्रस्ट. इंसान किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है, लेकिन किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का विश्वास हासिल करके फिर से लूज़ करना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है, जो कि हरी सिंह को लग रही थी. उसके शॉर्ट कैरियर में जितने भी साल उसने चोरी की, उस समय में उसने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया था कि इसको कैसे चोरी करना. अगर किसी ग्रीडी लालची इंसान के घर चोरी होती है तो वो उस चोरी के लिए डर जताता है. किसी अमीर इंसान के घर चोरी होती है तो वो गुस्सा हो जाता है, ही शोज़ एंगर. और पुअर मैन क्या ही कर सकता है, वो उस चोरी को एक्सेप्ट कर लेता है. बट अनिल को जब पता चलेगा कि उसके घर चोरी हुई है तो वो बहुत दुखी हो जाएगा. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was in November and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. सिचुएशन बताई हुई है. जस्ट इमेजिन कि हरी सिंह एक खाली मैदान में बैठा है बेंच पर, ठंड का मौसम है, अर्ली नवंबर्स, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं उसको लग रही है. एकदम से बारिश चलना शुरू हो गई. उसके शर्ट्स और पैजामाज जो है उस बारिश में भीग कर क्या हो गए, उसके स्किन से चिपक गए हैं. जस्ट एन इमेजिनरी पैराग्राफ. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. कोई फिक्र नहीं, बारिश से पूरे नोट्स गीले हो गए जो कि उसने बहुत मेहनत से चोरी करके भागने की कोशिश की. मिडनाइट आवर, टार जो थी, क्लॉक टार मतलब जो घड़ी सामने थी वो मिडनाइट यानी रात के 12 बजे का टाइम शो कर रहा था और बारिश के वजह से पूरे नोट्स गीले हो चुके थे. Anil's money. The most important thing is Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. हर चीज़ हरी सिंह ने खो चुका था. पैसे भी अनिल के थे. अगर वो उसके पास होता, अनिल के पास, तो सुबह उठ के अनिल उसको खुशी खुशी 1 or 2 रुपीज़ उसको दिया रहता टू गो टू सिनेमा एंड एन्जॉय. बट अब वो तो पूरे उसके पास है. ना ही वो अनिल के लिए मील्स कुक कर सकता था, ना ही वो अनिल के लिए बाज़ार में शॉपिंग कर सकता था, और ना ही वो अब अनिल से सेंटेंसेस एंड मैथ्स सीख सकता था. I had forgotten them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple as to be caught. But to be really big man
A clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn and read and write sentences. मन में शर्म की भावना आई। हरि सिंह ने सोचा कि मैं किसी का विश्वास ऐसे कैसे तोड़ सकता हूँ। मैं जो गलत काम कर रहा हूँ वो सही में गलत है। मैं किसी के यहाँ चोरी कर सकता हूँ लेकिन किसी का विश्वास चोरी नहीं कर सकता। ये मेरे उसूलों के बाहर है। ये हरि सिंह ने सबसे पहली बार अपनी थेफ्ट कैरियर में सोचा था और उसे उस चीज़ का बहुत ही शेम में एक शर्म थी। ओके। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hands came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and I slipped under it with the notes. वापस वो रूम में गया, बहुत nervous means frightened. He was very much frightened because he knew that it is very much easier to steal than to return it undetected. चोरी करके वापस उस जगह को, उस चीज़ को अटेन कर पाना, वो भी undetected. It is वेरी मच हार्डर देन टू स्टील। फिर क्या हुआ, उसने वापस मैट्रेस के अंदर अपना जो नोट्स थे वो वापस रख दिए। अनिल वॉज अस्लीप, ही डिडंट न्यू एनी थिंग अबाउट दैट। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. क्या हुआ, वो जानबूझ के सुबह लेट उठा। अनिल ने पहले से ही दोनों के लिए चाय बना चुकी थी और जैसे ही वो उठा उसने मुझे चाय के साथ एक 50 रुपये का नोट ऑफ़र किया। जैसे ही वो 50 रुपये का नोट मैंने देखा, माई हार्ट सैंक। द मीनिंग ऑफ हार्ट सैंक इज़ फेल्ट डिप्रेस्ड। देखते ही वो आश्चर्यचकित रह गया, भैया आप क्या होगा। उसे लगने लगा कि मैं पकड़ा गया, आई हैव बीन डिस्कवर्ड। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल ने बस इतना ही बोला, मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे और अब से तुम रेगुलरली पे किए जाओगे। माई स्पिरिट्स रोस्ट, but when I took the note I saw it was still wet from the night's rain. जैसे ही मैंने वो नोट लिया तो मैंने देखा कि वो कल रात की बारिश से स्टिल भीगे हुए थे, सूखे नहीं थे। माई स्पिरिट्स रोज मीन्स बिकेम वेरी होपफुल। अब मुझे उनसे जो एक आशा बन चुकी थी। Today we'll start writing sentences, he said. He was in a normal tone. Anil was literally in a normal tone. उसने बोला कि आज से हम sentences लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. तो ये देखिए कितना डीप एंड कितनी अच्छी तरीके से लेसन को एंड किया गया है। क्या बोलता है कि मुझे पता था कि अनिल को सब पता है कि क्या हुआ कल रात को, बट स्टिल अनिल ने उस चीज़ को शो नहीं किया। अनिल ने मुझे शर्मिंदा होने से बचाया। अनिल एक बहुत ही काइंड पर्सन है। इस चीज़ का एग्जाम्पल और उसका एक प्रूफ इस पैराग्राफ से दिया गया है। So with this we complete with our lesson the thief story. Literally this was a thief story, how a thief got some emotions, कैसे emotions जागे और वो अनिल के लिए खुशी खुशी बाद में काम करना पड़ा। Finally this lesson is written by Ruskin Bond. You can easily google it to find who was Ruskin Bond, how much types of stories and poems he has written. With this we complete with our chapter. Thank you everyone.